Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. So today's lecture is all about the sentences. आज हम देखेंगे sentences क्या होते हैं, sentences के बारे में पढ़ेंगे and then we will move towards the kinds of sentences, how many types of sentences are. So let's get started our lecture without any delay. First, see the definition of sentences. Sentences is the group of words which make a complete sense. अल्फाज का वो मजमुआ जो कि हमें प्रॉपर एक सेंस दे रहा हो, उनको हम sentences कहते हैं. Let's take an example. The earth revolves around the sun. इसमें earth revolves around the sun. This is a complete sentence and it is making a complete sense. If I say that the earth revolves, so this is an incomplete sentence. Earth revolves around the sun. हमें यहाँ बिल्कुल पता चल रहा है कि अर्थ जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है. इसलिए sentences वो होते हैं जो कि हमें complete sense दे रहे हों. Let's take another example. Sarah sits on the wall. इसमें भी एक प्रॉपर सेंस हमें पता चल रही है बिकॉज इट इज़ ए कम्प्लीट सेंटेंस. इफ़ आई से सारा सिट्स, सो इट इज़ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस. इफ़ आई से सारा सिट्स ऑन द वॉल, सो it is a collection of words, a group of words which join together and make a complete sense. This sentence is making a complete sense. Now move towards the kinds of sentences. So first kind of sentence is known as declarative or assertive sentence. अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इन सेंटेंसेस की. A sentences that makes a statement or assertion is called declarative sentences. जितने भी sentences हम पढ़ते हैं, जितने भी kinds of sentences, affirmative sentences हैं, negative sentences हैं, जितने भी sentences हैं, these are the type of assertive sentences. Simple sentence जिसमें एक proper sense हो, उनको हम assertive sentences कहते हैं. एक एग्जाम्पल के थ्रू, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, इट इज़ एन एफर्मेटिव सेंटेंस एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस बिकॉज इट इज़ मेकिंग एनी स्टेटमेंट दैट इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. नेक्स्ट टाइप ऑफ sentences is interrogative sentences. interrogative sentences वर्ड से ही पता चल जाएगा. जो सवालिया जुमले होते हैं उनको हम interrogative sentences कहते हैं. interrogative sentences is the sentences that ask a question is called interrogative sentences. So interrogative sentences में हमारे पास WH family भी आ जाती है. who, where, why, how. For example, where do you live? This is the type of interrogative sentence. How do you do? It is also a type of interrogative sentences. So the next kind of sentences is imperative sentences. Imperative sentences are the sentences that express any command is called imperative sentences. imperative sentences को हम हुक्मिया जुमले भी कहते हैं, जिसमें कोई कमांड एक्सप्रेस कर रहे हों या हम कोई रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हों, उनको हम imperative sentences कहते हैं. Just take an example. Be quiet. This is a sentence. This is the type of example of imperative sentence. Be quiet. Now यहाँ पर हम हुक्म दे रहे हैं that be quiet और हम कमांड जाहिर कर रहे हैं. सो ये imperative sentence की एक टाइप है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिट डाउन. इसमें भी हम कमांड शो कर रहे हैं और ये भी imperative sentences की ही एग्जांपल है. हैव मर्सी अपॉन अस. अब इस सेंटेंस में हमें रिक्वेस्ट थोड़ी सी शो हो रही है. हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को कि हैव मर्सी अपॉन अस. ये भी imperative sentences की ही एग्जांपल है. So the last kind of sentences is exclamatory sentences. Exclamatory sentences वो sentences होते हैं जो कि हमारे पास एक ह्यूज, एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन
स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जाहिर कर रहे हों उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। एंड इन सेंटेंसेस के लास्ट पर हम एक्सक्लेमेटरी साइन भी इस्तेमाल करते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट अ शेम। यहाँ पर हम थोड़ा अपने एक्सप्रेशंस को ज़ाहिर करेंगे इस सेंटेंस में। इन सेंटेंसेस में हम अपने एक्सप्रेशंस को ज़ाहिर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करते हैं। व्हाट अ शेम। यहाँ पर हमारे पास सैड फीलिंग्स ज़ाहिर हो रही हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच। इन सेंटेंसेस में हम एक स्ट्रॉन्ग हैप्पी फीलिंग्स को ज़ाहिर करते हैं। सो इन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं और इन सेंटेंसेस के आखिर में एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगता है। सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गई थी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके आखिर पे भी क्वेश्चन मार्क का साइन लगता है, बिकॉज़ वो भी क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे होते हैं, वो क्वेश्चन के बारे में सेंटेंसेस होते हैं। तो उन सेंटेंसेस के आखिर पर भी क्वेश्चन मार्क का साइन लगता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के आखिर पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। सो अब हम अपने लेक्चर को रिवाइज़ कर लेते हैं एक दफ़ा। सो आज का लेक्चर सेंटेंसेस के बारे में था। सबसे पहले हमने सेंटेंसेस की डेफिनेशन देखी कि सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि हमें कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। सो 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस विच इज़ डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, imperative sentences, and last one is exclamatory sentences. Declarative sentences are those sentences which make any statement. These sentences is also known as assertive sentences. Next kind हमने पढ़ी sentences की, that is interrogative sentences. Interrogative sentences वो होते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो किसी भी चीज़ का। तो इस पर WH फैमिली का हमने पढ़ा कि WH फैमिली आ जाती है, where, why, who, when, which. These are interrogative sentences. ये interrogative sentences में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं imperative sentences. Imperative sentences जो that express any command or request is known as imperative sentences. हुक्मिया जुमले जिनको कहते हैं। The last kind of sentence is exclamatory sentences that express the strong feelings. The feelings should be like happy feelings or sad feelings. So today lecture was all about sentences. So आज का लेक्चर इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया so don't forget to subscribe my channel, like and share. If you have any question, do comment in the comment section. Take care. Allah Hafiz.